کو بتائیں بارکھان میں دہشت گردوں نے بس سے اتار کر 7 مسافروں کو قتل کر دیا۔ تمام افراد کا تعلق پنجاب سے ہے۔ مرنے والوں کے اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں۔ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں نے شناختی کارڈ دیکھ کر مسافروں کو اتارا اور گولیاں ماری۔ تفصیلات جان لیتے ہیں آج نیوز کے کوئٹہ سے بیورو چیف مجیب احمد سے۔ جی مجیب، اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو بارکھان کے علاقے رڑکن میں پیش آیا ہے۔ یہ بس کوئٹہ سے مسافروں کو لے کے فیصل آباد جا رہی تھی۔ جب یہ رڑکن کے مقام پر پہنچی ہے تو مسلح افراد جنہوں نے ناکہ لگایا ہوا تھا انہوں نے اس بس کو فائرنگ کر کے روکا، اس میں چڑھے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے مسافروں کے شناختی کارڈ چیک کرنے شروع کیے، جس کے بعد انہوں نے 7 افراد کو دھکے دیتے ہوئے بس سے اتارا اور ان کو لے کے سائڈ پہ چلے گئے، جس کے بعد فائرنگ کی آوازیں آئیں اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ان کو مار دیا گیا ہے۔ بعد میں ان 7 افراد کی لاشیں بھی مل گئیں۔ ان لوگوں کے اہل خانہ جن میں خواتین بھی تھی، بچے بھی تھے، مرد بھی تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بے دردی سے شناختی کارڈ چیک کیے۔ ایون یہ تک دیکھا گیا کہ 2 خواتین جو اپنے بھاوج کے انتقال پر تعزیت کے لیے فیصل آباد سے کوئٹہ آئی تھی، ان کا بھائی بھی ساتھ تھا، اس کو بھی اتار کے وہ نیچے لے گئے اور قتل کر دیا۔ اسی طرح ایک اور شخص جو ملتان کا ہے، اس نے بتایا کہ اس کے بھائی کو بھی شناختی کارڈ دیکھ کے اتارا گیا اور بے دردی سے نیچے لے جا کے فائرنگ قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے، فورسز وہاں پہ پہنچ گئی ہیں، لیویز بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو رات کو جو اہلی سروسز ہیں ان کو بھی بلا لیا گیا تاکہ دہشت گردوں کا سراغ لگایا جا سکے۔ اس علاقے میں یہ پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے موسیٰ خیل کے علاقے میں ایک بس سے 23 مسافروں کو اتار کے بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ دیکھیے، یہ بارکھان میں واقعہ پیش آیا ہے، یہ کس معاملات سے جڑتا ہوا آپ کو لگ رہا ہے یہ واقعہ، اور یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ جی بالکل، یہ پہلے بھی اس طرح کی واردات اس کے قریبی علاقے، قریبی ضلع موسیٰ خیل میں ہوئی، جس کی ذمہ داری کالعدم علیحدگی پسند تنظیم PLA نے قبول کی تھی اور ان کا یہ موقف تھا کہ انہوں نے غیر مقامی لوگوں کو ٹارگٹ کیا، بے گناہ مسافروں کو کہ پہلے انہوں نے مارا تھا۔ وہ 23 کے 23 لوگ پنجاب سے تعلق رکھتے تھے۔ اس دفعہ بھی شناختی کارڈ چیک کر کے مسافروں کو اتارا گیا ہے اور ان کو قتل کیا گیا ہے بے دردی سے۔ خیال یہی کیا جاتا ہے پیٹرن بھی وہی ہے، علاقہ بھی وہی ہے، تو یہ کالعدم تنظیم کی کارروائی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی کرتے رہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا مجیب کہ جو باقی رہ گئے تھے، جو مسافر تھے، ان کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں اور ان کو کیا روانہ کر دیا گیا ہے؟ جی، ان کو وہاں سے روانہ کر دیا گیا ہے۔ لاشیں اب سول ہاسپٹل بارکھان پہنچائی گئی ہیں اور ان کو کفنانے کے بعد جلد ہی روانہ کر دیا جائے گا ان کے آبائی علاقوں کی طرف، جبکہ مسافر بسوں کو اب سیکیورٹی میں آگے روانہ کیا جا رہا ہے۔ جبکہ بارکھان سے پہلے موسیٰ خیل کے علاقے میں بھی کچھ 30 سے زائد مسافر بسوں اور گاڑیوں کو روکا گیا ہے سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے۔ اب جیسے ہی اس ایریا کو کلیئر کیا جائے گا، باقی گاڑیاں بھی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوں۔ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا مجیب احمد۔ جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کو بتا دیں کہ بارکھان میں دہشت گردوں نے بس سے اتار کر 7 مسافروں کو قتل کر دیا ہے۔ تمام افراد کا تعلق پنجاب سے ہے۔ مرنے والوں کے اہل خانہ اس وقت غم سے نڈھالے۔ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ہمارے بیورو چیف کوئٹہ مجیب احمد۔ مجیب، یہ بتائیے گا اس وقت جو عینی شاہدین ہیں جنہوں نے یہ واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا، ان کے کیا الفاظ ہیں اس حوالے سے؟ ہماری جو لوگ گاڑی میں سوار تھے بس میں، ان سے بھی بات ہوئی۔ ان میں کچھ لوگ جو مقامی ہیں وہ بھی تھے جو اپنے علاقے کوئٹہ سے بارکھان کی طرف آ رہے تھے، وہ انہوں نے وہاں اترنا تھا، ان سے بھی بات ہوئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے گاڑی میں پہلے فائرنگ کر کے ناکہ لگا کے روکا ہے گاڑی کو، پھر اس گاڑی میں چڑھے ہیں، پھر لوگوں کے انہوں نے شناختی کارڈ چیک کرنے شروع کیے ہیں۔ جبکہ جو خواتین اور بچے بیٹھے ہوئے تھے ان سے انہوں نے بات نہیں کی، مردوں کے شناختی کارڈ وہ چیک کرتے جا رہے تھے۔ جو ان کو مشکوک ان کے لحاظ سے نظر آیا، جو پنجاب کے جن کے اوپر مکمل مستقل پتے تھے، ان لوگوں کو نیچے اتارا، دھکے دیتے ہوئے مارتے ہوئے وہ نیچے لے کے گئے اور نیچے لے جانے کے بعد وہ جو سڑک کے ساتھ پہاڑی سلسلہ اندھیرے میں اس طرف لے کے گئے، جس کے تقریباً 10 منٹ بعد فائرنگ کی آوازیں آئیں۔ پھر لوگوں نے وہاں جا کے دیکھا تو ڈیڈ باڈیز وہاں پڑی ہوئی تھیں، ان کو سروں میں گولیاں مار کے قتل کیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد جو خاندان اس بس میں سوار تھے، اسپیشلی بچے اور خواتین، وہ تو بالکل غم سے نڈال ہیں، ان کی بری حالت ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کے واقعات ہوتے رہے اس ایریا میں، اور یہ چونکہ بہت طویل راستہ ہے کوئٹہ سے پنجاب تک کا اور پوری ہائی وے ہے، یہاں پہ جگہ جگہ پوسٹیں بھی ہیں، لیکن بیچ کا ایسا ایریا چنا گیا ہے جس میں
आगे और पीछे तकरीबन 25 किलोमीटर तक सिक्योरिटी फोर्स की कोई पोस्ट नहीं है, तो वो बीच का एरिया रैकी करके चुना गया ऐसे इलाके को जहाँ पे नजदीक कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी, इसलिए इन बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाया गया। अब इनकी मस्जिदें रवाना करने का काम है जो जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। काफ़ी हौलनाक वाक़या पेश आया है। मुजीब, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। मुतासरीन का क्या कहना है, उनके हवाले से उनके अल्फाज हम नाज़रीन को सुनाते हैं। कोयटा से कहाँ जा रहे थे? कोयटा से फैसलाबाद। हमें नहीं उतारा, बस आपने शिनाख्त दे सानू कुछ नहीं किया, शिनाख्त देखा है? उन्होंने काट देखा। दिखा तो उनको धक्के मार के नीचे ले गए। क्या लगते थे? नहीं, भाई थे कह रहे हैं। अभी वहाँ आप फैसलाबाद जा रहे थे? हाँ जी। जब आए ना, उन्होंने शनाख्ती कार्ड चेक किया। मेरा इंग्लिश में शनाख्ती कार्ड था, दूसरा मेरा जो भाई था उसको शनाख्ती कार्ड उसका देखा, उसने कहा मेरे पास नहीं है, उसको तार के नीचे ले गए और गोलियां मारी उन्होंने दहशतगर्दों ने। हम लोग कोयटा से मुल्तान जा रहे थे, रैशी बुरे वाला का रैशी हूँ मैं। दहशतगर्द जो तकरीबन 10-12 आदमी थे, कलेशने। अच्छा मुजीब, आप हमारे साथ लाइन पे अगर मौजूद हैं, आप हमें सुन सकते हैं। तो इस वक्त आप हालात बता रहे हैं। बारखान में दहशत गर्दों ने बस से उतारकर 7 मुसाफिरों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। तमाम अफराद का जो ताल्लुक बताया जा रहा है वो पंजाब से बताया जा रहा है और मरने वालों के अहले खाना इस वक्त गम से निढाल है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोयटा, हमारे साथ मौजूद हैं मुजीब अहमद, जो हमें इस वक्त वहाँ का हाल बता रहे हैं कि इस वक्त वहाँ पे क्या मामलात हैं। जी मुजीब, बताइएगा कि इस वक्त सिक्योरिटी हुक्काम का क्या कहना है और इस वक्त उस इलाके को जो जाए वकुआ है उसको कॉर्डन ऑफ करके क्या कोई कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? जी बिल्कुल, ये एरिया पूरा ये तकरीबन 100 किलोमीटर की पट्टी को इस वक्त फ्रीजिंग पोजीशन में रखा गया है। यहाँ पे जो गाड़ियां बारखान से पहले मूसाखेल के एरिया तक पहुंची थी उनको वहीं रोक लिया गया है। उनको फिर क्लियरेंस के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय में आगे मूव किया जाएगा, जबकि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको पूरा कॉर्डन किया हुआ है। यहाँ से जो शवाहिद उनको मिल सकते हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। जो बस मुतासरा थी या इससे आगे जो बसें थी उनको अभी रखा गया है, उनके साथ भी सिक्योरिटी कॉन्वॉय चलेगा और उनको पंजाब तक वो पहुंचा के आएगा ताकि आगे कोई ऐसा वाकया पेश ना आए किसी बस के साथ। तो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है इस वक्त। इसके अलावा जो हेली की नाइट सर्विसेज हैं वो भी ली गई हैं ताकि दहशतगर्दों को ट्रेस किया जा सके। इस वक्त एफसी और लेवीज की पूरी टीमें इस जाए वकुआ और इसके अतराफ में मौजूद हैं ताकि जो और मुसाफिर बसे हैं उन मुसाफिरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। मुझे ये भी बताइएगा कि ये वाकया जिस जगह पे पेश आया है वहाँ पे मामूल क्या रहता है, रूटीन रहता है? वहाँ से गाड़ियाँ किस अंदाज में गुजरती हैं? क्या इसी तरीके से निहत्ते अंदाज में गाड़ियों का गुजर होता है? और मतलब ये क्या एक हादसा कहें इसको? हादसा तो यकीनन ये हादसा है, लेकिन ये किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं? देखिए, ये प्लान दहशतगर्दी है, ये कोई हादसा नहीं है। इस एरिया में इससे 100 किलोमीटर के फासले पर मूसा खेल के एरिया में कुछ अर्से पहले ही मुसाफिर बस को रोक के इसी तरह लोगों को कत्ल किया गया, बसों को आग लगाई गई। तो ये तो खुली दहशतगर्दी है, ये कोई हादसा नहीं है। लेकिन ये रूट इतना तवील है कि जगह जगह चेक पोस्टें भी नहीं है। इसमें भी 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर के फासले पर चेक पोस्टें बनाई गई हैं जहाँ पे गाड़ियों को चेक किया जाता है। लेकिन दहशतगर्द अमूमन रैकी करके ऐसे पॉइंट को मुंतखब करते हैं जहाँ पे नजदीक कोई ना हो। इस बार भी उन्होंने कोशिश ये की है कि रड़कन के इलाके में हाईवे पे इस बस को निशाना बनाया और उन्होंने इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लिया। इस बस की कार्रवाई में वो मुश्किल 20 से 25 मिनट उन्हें लगे हैं। गाड़ी को रोक के उन्होंने आगे किया है और मुसाफिरों को उतार के ले जाके मारा है। तो उन्होंने बाकायदा रैकी की गई थी। अब इस रूट पे जो पंजाब का रूट है, यहाँ से इंटीरियर पंजाब के लिए जो बसें और सिविल गाड़ियां चलती हैं वो हर 10-15 मिनट बाद कोई बस यहाँ से गुजरती है और वहाँ से जो कुछ बसें ऐसी होती हैं जो बारखान तक जा रही हैं, कुछ कोलू की तरफ जाती हैं, कुछ मुस्तकिल वाली होती हैं। तो मुख्तलिफ बसें होती हैं, लेकिन जो पंजाब की बसें होती हैं वो 10-12 ही होती हैं और वो अमूमन शाम को निकलती हैं, रात को इस वक्त के करीब ये पहुँचती हैं बारखान और मूसाखेल के इलाके। अच्छा, ये ज़रूर बताएं कि इस वक्त ये अनडिक्लेयर्ड है कि ये वाक़या किसने किया है, कौन सी दहशतगर्द तंजीम इस चीज़ की जिम्मेदारी कबूल करती है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक क्या किसी तंजीम ने या किसी दहशतगर्द कलअदम तंजीम ने इस चीज़ की जिम्मेदारी कबूल करी? अभी तक किसी जानिब से इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। एक अंदाज़ा महसूस किया जा रहा है कि इस तरह का वाक़या पहले किसने किया था, शायद वही हो। अभी तक ऑफिशियली इसकी जिम्मेदारी नहीं कबूल की गई। अमूमन ऐसा होता है
कि टेलीग्राम, ट्विटर या दूसरे साइट से जिम्मेदारी इनकी जानिब से ले ली जाती है, लेकिन ताल अभी तक कोई ऐसा हमारी नज़र से नहीं गुजरा कि जिम्मेदारी कबूल की गई। लाइन पर रहिएगा मुजीब अहमद। वो नाजरीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको बताएं कि बारखान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है। आपको बताएं कि बारखान में दहशतगर्दों ने बस से बाकायदा उतारकर 7 मुसाफिरों को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। तमाम अफराद का ताल्लुक जो बताया जा रहा है वो पंजाब से बताया जा रहा है। शनाख्ती कार्ड देखकर गोलियां मारी गई हैं और मरने वालों के इस वक्त अहले खाना बे इंतहा गम में इस वक्त मुब्तला है। और जो इस वक्त वहाँ की सिचुएशन है उसके हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कोयटा से ब्यूरो चीफ, जो हमें बता रहे हैं कि इस वक्त जो मुतासरीन हैं उनकी बस को बाकायदा एक सिक्योर्ड कॉन्वॉय के अंदर रवाना कर दिया गया है। मुजीब अहमद, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। एक बार मुख्तसर अल्फाजों में एक बार फिर ये बता दें कि ये क्या वाक़या है और कितना बेदर्दी से ये वाक़या रोनुमा हुआ है। ये बस मुसाफिर बस है, प्राइवेट बस है जो यहाँ से पंजाब के लिए चलती है। ये कोयटा से रवाना हुई है तकरीबन शाम 5 बजे और ये रात को तकरीबन 12 बजे के करीब या उससे पहले ये पहुंची है बारखान के इलाके रड़कन में। यहाँ पे रोड पे मुसल्लह अफराद खड़े थे जिन्होंने फायरिंग की है, इस बस को रोका है और इसके बाद रोकने के बाद वो इस बस में चढ़े हैं। इसमें जो लोग बैठे हुए थे उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए हैं। 7 लोगों को धक्के देते हुए इन्होंने उतारा है और करीबी जो रोड के साथ पहाड़ी दस्ता है उधर ले जाके उन्होंने फायरिंग करके इन 7 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया और उसके बाद वो फरार हो गए। इन 7 अफराद की मैयतें मुंतकिल कर दी गई हैं बारखान हॉस्पिटल, जबकि जो लोग इसमें अहले खाना थे उन लोगों के जिनको उतार के कत्ल किया गया वो इंतहाई गमज़दा हैं और खौफ में भी बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं। उनका ये कहना है कि वो अपने कामों के सब सिलसिले में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए कोयटा आए थे और अपने घरों को वापस जा रहे थे कि उनके साथ ये आंदोलनाक वाक़या हुआ। इस वक्त पोजीशन ये है कि बसों को सिक्योरिटी में आगे मूव किया जा रहा है। कुछ बसों को मूसा खेल के इलाके में रोका गया और उनको भी जल्दी सिक्योरिटी कॉन्वॉय में आगे की तरफ निकाला जाएगा। अब क्या मामूल होगा ये दहशतगर्दी, खुली दहशतगर्दी का वाक़या जब अब हम देख रहे हैं, तो अब इस रूट पर और इससे मुल्हिका और रूट्स पर किस तरह का मामूल हुआ करेगा जब वहां से इस तरह से मुसाफिर बसें गुजरा करेंगी? जी मुझे देखिए, ये रूट काफी तवील है, 500 किलोमीटर से ज्यादा तवील ये रूट है। अब हर दूसरे तीसरे किलोमीटर पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि चेक पोस्टें बना के वहाँ किया जाए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हर तहसील हर जिले में सिक्योरिटी कॉन्वॉय उनको मूव करे, एक जिले से दूसरे जिले तक सिक्योरिटी उनके साथ रहे और फिर वो आगे लेवीज फोर्स या एफसी जो भी है उनकी हिफाजत के लिए उनके साथ चले। ये करना पड़ेगा क्योंकि इसके बगैर ये वाक़यात तसलसल के साथ होते रहेंगे अगर ऐसा ना किया गया। अगर एहतियाती तदाबीर अगर इख्तियार नहीं की गई तो इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। हम बताएं आपको कि बारखान में दहशतगर्दों ने बस से उतारकर 7 मुसाफिरों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब से है। मरने वालों के अहले खाना इस वक्त गम से निढाल है। आपको बताएं कि बारखान का इलाका है जहां दहशतगर्दों ने इस वक्त बेइंतहा बेदर्दी से 7 अफराद को बस से उतार कर कत्ल कर दिया है। जी हां, ये दहशतगर्दी का, ये खुली दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है। बलूचिस्तान का इलाका है बारखान, जहां पर दहशतगर्दों ने बस से उतारकर 7 मुसाफिरों को मौत के घाट उतार दिया है। तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब से बताया जा रहा है। मरने वालों के अहले खाना इस वक्त गम से निढाल है और इस वक्त उनका कहना है कि दहशतगर्दों ने शनाख्ती कार्ड देखकर मुसाफिरों को उतारा और यक्के बाद दीगरे गोलियों का निशाना बनाया। हमें अपडेट कर रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ कोयटा से मुजीब अहमद। बहुत शुक्रिया मुजीब अहमद आपका अपडेट करने का। जा रहे थे कोयटा से फैसलाबाद हमें नहीं उतारा, बस आदमी को शिनाख्ती कार्ड देख सानू कुछ नहीं किया। शिनाख्ती कार्ड देखा है, उन्होंने काट देखा। दिखा तो हमको धक्के मार के नीचे ले गए। क्या लगते थे? नहीं, भाई थे कह रहे हैं। अभी वहाँ आप फैसलाबाद जा रहे थे? हाँ जी। जब आए ना उन्होंने शनाख्ती कार्ड चेक किया। मेरा इंग्लिश में शनाख्ती कार्ड था, दूसरा मेरा जो भाई था उसको शनाख्ती कार्ड उसका देखा, उसने कहा मेरे पास नहीं है, उसको उतार के नीचे ले गए और गोलियां मारी उन्होंने दहशतगर्दों ने। हम लोग कोयटा से मुल्तान जा रहे थे, रहायशी बुरे वाला का रहायशी हूँ मैं।
दहशतगर्द जो तकरीबन 10-12 आदमी